Hi guys, this video is about the law of conservation of momentum. It's very simple and basic topic. Momentum, simply described as the product of mass and the velocity of the body, right? Just keep this simple definition in your mind. Its unit will be, what's the unit of mass? It's kilogram. What's the unit of velocity? It's meter per second. Here it is, kilogram meter per second is the unit of momentum, right? Okay, without going into the details of many of the aspects of the momentum, I'm going straight away towards the law of conservation of momentum, because usually you are going to find out the question in the paper related to law of conservation of momentum. By the way, it's a vector quantity. Always remember, it requires a direction, right? Okay, let me speak about the law of conservation of momentum, and for that there is a little case which I'm going to discuss with you. Okay, now this is initial case, this is the collision, and this is the final case, right? Now there are two bodies of different masses. Let me call this body as m1. It could be of any mass, but it's a large mass, right? This is another body, let me call it m2. Now the velocity of the first body, as it is initial velocity, so it can be represented with the letter u, and let me name it as u1. Similarly, the velocity of the second body is remembered, or it will be remembered during the question as u2, right? You can see with the length of the arrow that the velocity of the m1 is larger and the velocity of mass 2 is smaller. So eventually this body will approach, the m1 will approach m2, and they will collide with each other. So this is the collision case. Now during the collision there will be a change in the momentum, right? Or I should say there will be exchange of the momentum, and finally the last stage will appear, that is the final stage, in which the masses will remain same, that is the body has not lost any mass, but the velocities are now a little bit changed. You can see with the, I'm deliberately making this arrow in this way so that you can understand that there is change in the velocity. Previously this arrow was small for m1, but now this is large for m1, but this is smaller. Same thing is happening with u2, that is u2 was smaller but now it's larger. This is because there is some exchange of velocity had happened. Now for the final case I will be considered velocity as v1 and this one as v2. Now first of all we must consider this, हमें ये जहन में रखना है this point कि टोटल इनिशियल मोमेंटम अगर हम इस केस का निकालें तो भाई m1 एंड m1 और u1 ये दोनों रिलेटेड हैं m1 के साथ, ठीक है ना, मास 1 के साथ. तो इसका मोमेंटम अगर टोटल निकाले तो इट विल बी m1 u1 प्लस इस बॉडी का मास, क्योंकि इनिशियल फेज की बात हो रही है, तो इट विल बी m2 u2. ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक. फाइनल मोमेंटम, अगर आप खुद अपने आप से सवाल करेंगे व्हाट अबाउट वी विल डू इन द फाइनल मोमेंटम, द फाइनल मोमेंटम विल बी m1 v1 plus m2 v2, right? Okay, now this law tells us that total initial momentum must be equal to total final momentum, right? So by considering this definition of law of, or the description of the law of conservation of momentum, we can simply say that m1 u1 plus m2 u2, that is total initial momentum, is equals to m1 v1 plus m2 v2, that is total final momentum. This is the thing which you have to keep in your mind while you are discussing the law of conservation of momentum. Let us move on to a new concept, or a little different concept, which is also related to momentum, which is called impulse. Now what is impulse? If somebody asks you what is impulse,
keep in your mind that the impulse is only the change in momentum. Now, let me describe it in some other way. First of all, you understand and you remember, I'm not going to the details of all the detailed concept, but just giving you the basic idea so that you can understand what is happening. Everybody remember, as you are already the physics student, you know that the equation for acceleration is v minus u upon t, right? Okay, this is the equation of acceleration. Now if I multiply this equation, the both sides of this equation, by mass. So if I multiply both sides by mass and this side by mass, this equation will become ma, this side will become ma, and this side will become mv minus mu and divided by t. What is mv? V is the final velocity and m is the mass, so that is my total final momentum of the body, minus mass into initial velocity will be momentum initial. Now if you subtract the final condition from initial condition, you are going to see that it represents the change in momentum divided by time. As time is not changed, time will remain as it is, right? Now move on to the next part. This ma from the Newton's second law, you know this statement very well, that force or the resultant force is equals to mass times acceleration. So F is equals to ma can be replaced by the force. Now in this statement I can say that force is equals to change in momentum. You can see that this is the change in momentum divided by time. So change in momentum is kept as it is, time will go on the other side. So here comes the new formula for the change in momentum, that is force multiplied by time is equal to change in momentum, that is represented by delta p, and that is whole is equals to change in momentum is impulse, so it can also be considered as impulse. अब ये तो हो गई किताबी बातें, सही है ना, और ये सारी बातें तुम्हें पहले भी पता है। काम की बात ये है बेटा कि इम्पल्स के बारे में आपको पता है कि ये एक क्वांटिटी है, लेकिन ये दो अलग अलग फार्मूला से आ सकती है। आपको ये देखना है, द थिंग विच यू हैव टू कंसिडर इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सवाल में क्या बात कर रहा है, सवाल में जो बात कर रहा है उसके हिसाब से उसे जवाब दें। समझ आ रही बात? अभी मैं एक दो क्वेश्चन भी आपके साथ करूंगा, वो भी देखिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन में अगर फोर्स और टाइम की बात करेगा और इम्पल्स पूछेगा तो आपको फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई करना है भाई, और अगर आपको इम्पल्स पूछा जा रहा है और मास और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की बातें कर रहा है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चेंज इन मोमेंटम की बात करनी है, राइट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ और देखते हैं कि व्हाट इज़ हिडन इन दिस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है इट्स 2017, यस, मई जून 2017, 0625 कोड। Now you can see this question, first part is underline the pair of quantities which may be employed together to find the impulse। जी जनाब, फौरी तौर पर नज़र फोर्स इंटू टाइम, ये रहा फोर्स इंटू टाइम, यही इम्पल्स अभी देखा है आपने एक सेकंड पहले। ओके, शोज अ कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है जी, ये सरफेस पर ए जो है ए के साथ एरो बना हुआ है और बी जो है इसके साथ वो एरो नहीं है, लिखा हुआ भी है बिफोर द कोलिजन ब्लॉक ए ऑफ मास 2.4 kg इज मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी ऑफ दिस मास इज एट रेस्ट। ऑब्वियसली इसके साथ कोई तीर नहीं बना हुआ, उन्होंने लिखा भी है कि दिस इज एट रेस्ट, राइट। आफ्टर द कोलिजन ब्लॉक ए एंड बी स्टिक टुगेदर, ये दोनों आपस में जुड़ गए एक दूसरे के साथ। जैसे कैरम बोर्ड में आप देखते हैं कभी कभार स्ट्राइकर जो है वो आपकी गोट के साथ 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 ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो यही वाला केस है। ठीक है, आगे देखिए, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए बिफोर कोलिजन। लोग बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में वो समझा नहीं सकता कि इट इज़ स्पीकिंग अबाउट मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए बिफोर कोलिजन। सो दिस इज़ ब्लॉक ए, दिस इज़ द स्पीड, सॉरी दिस इज़ द वेलोसिटी, दिस इज़ द मास, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है जी, मास कितना है 2.4
मल्टीप्लाइड करें वेलोसिटी से, वेलोसिटी है 3.0, मल्टीप्लाई कर लें, कितना जवाब आता है चेक करिए, जल्दी से बताइए। इट्स 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.0, ठीक है जी, आपके पास आ गया इट्स 7.2, द मोमेंटम इज 7.2। यूनिट आपने देखा था किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, यूनिट पे पेनल्टी होती है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा इसको, इसमें यूनिट नहीं लिखा गया, आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, द वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी v की बात कर रहा है, ओके। और ये वेलोसिटी v कहाँ रेफ़र किया, देखिए ये वाली वेलोसिटी की बात। अब आप लेटर पढ़ के परेशान ना होगा, कौन सी वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी ऊपर डायग्राम में उसने बनाई है, ये वेलोसिटी, दिस इज़ द वेलोसिटी विच इज़ रेफर्ड ओवर हियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। फॉर दैट व्हाट विल यू डू, यू विल मेक यूज़ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए भाई देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। तो इस केस का टोटल इनिशियल मोमेंटम, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इट ओवर हियर विद द रेड पेन। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, इन दोनों का मोमेंटम तो 7.2 आ गया, ये आपने अभी भी निकाला, यही तो है भाई। अच्छा, प्लस इसका मोमेंटम क्या होगा, आपको पता है मैथ तो है, वेलोसिटी तो है ही नहीं, वेलोसिटी तो नहीं है, वेलोसिटी तो ज़ीरो है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, यू मल्टीप्लाई समथिंग विद ज़ीरो, क्या जवाब आएगा, इट विल बी जस्ट ज़ीरो, ठीक है। तो 7.2 में कुछ जमा नहीं हुआ, तो 7.2 ही रहा। दिस इज़ टोटल इनिशियल मोमेंटम, राइट, ओके। व्हाट इज़ टोटल फाइनल मोमेंटम, ओके। अब टोटल फाइनल मोमेंटम में दोनों बॉडीज़ का मास आपस में ऐड हो चुका है, यानी 2.4 प्लस 1.2, ये दोनों जुड़ गई ना बॉडीज़। ये सवाल कई तरीके से कई बार आ चुका है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, अलग अलग केसेस आपको बता रहा था, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ओके। तो इन दोनों को ऐड करें, इट इज़ 3.6 आई गेस, 2.4 प्लस 1.2 इट इज़, ओके, 3.6, राइट, ओके। तो ये टोटल मास इज़ 3.6, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी आपको नहीं पता, आपको मालूम है टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ 7.2, ठीक है, इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, टोटल फाइनल मोमेंटम में है ही कितना, मास तो दोनों का मिलाकर टोटल लेंगे तो ये एम ए प्लस एम बी, ठीक है ना, दोनों का मास मिलाकर रखेंगे, और टोटल वेलोसिटी है, तो दोनों का मास मिलाकर जो आपने अभी बनाया था इट्स 3.6, ठीक है। तो आप 3.6 यहाँ पर रखेंगे, तो द फाइनल आंसर विल बी 7.2 इज़ इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय v, या फिर v इज़ इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाय 3.6 इज़ इक्वल टू 2 आई गेस 2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, इट्स 2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, ओके। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई, ये समझ में आ रहा है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऐसे आगे चलते हैं, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ओके। क्या कह रहा है, द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय ब्लॉक बी ड्यूरिंग द कोलिजन, इसका इम्पल्स कितना होगा ब्लॉक बी का, ओके। तो ब्लॉक बी का इम्पल्स का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है इम्पल्स क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम फौरी तौर पे, तो आपको इसका मोमेंटम निकालना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू कि आपके पास इस वक्त कुछ पैसे हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास इस वक्त 50 रुपये, 50 रुपीज़ यू हैव, राइट, एंड मैंने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास कितने पैसे हो गए, आपके पास हो गए 200 रुपीज़, राइट, तो मैंने कितने पैसे दिए होंगे, आप क्या निकालेंगे, चेंज, कैसे, फाइनल कितने रहे, 200 थे आपके पास, फाइनल 200 रुपीज़ हुए ना, और पहले कितने थे 50 रुपये, 200 में से 50 माइनस करेंगे 150, आप बता देंगे भाई ये है चेंज। तो इसमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं, फाइनल मोमेंटम किस बॉडी का, अच्छा याद रखें ये ब्लॉक बी लिखा हुआ है, तो ब्लॉक बी का फाइनल मोमेंटम कितना हुआ जी, फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बी, ये देखें ब्लॉक बी का फाइनल मोमेंटम, ब्लॉक बी का फाइनल मोमेंटम कितना रहा, व्हाट इज़ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक बी, ये देखें ये कितना है ब्लॉक बी का मास कितना है 1.2, और इसका वेलोसिटी कितना है 2, तो इट इज़ 1.2 इंटू 2, ये इसका फाइनल मोमेंटम हो गया, यानी मोमेंटम फाइनल, ठीक है, माइनस मोमेंटम अगर इनिशियल की बात करें, ठीक है, तो माइनस मोमेंटम इनिशियल कितना था, इसका मोमेंटम इनिशियल तो ज़ीरो था, ठीक है, ये तो आपने सिर्फ ब्लॉक बी की बात करनी है, तो ब्लॉक बी का इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो था, ये तो पहले से ही देखा है हमने, राइट, तो उसमें से माइनस किया, तो ये कितना हो गया, इट्स 2.4 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, राइट, ओके। इसका आंसर्स भी साथ साथ चेक करते जाते हैं ताकि कोई एम्बिग्यूटी आपको ना रहे, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद ओके जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने okay, yeah, which question is this, this one is question number 3, okay, so let me check question number 3 here,
ओके, या इट्स 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स अगेन 2.4 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, राइट। ये सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा, ओके। और उसके बाद फाइनली आपके पास यहाँ पर एक आखिरी सवाल का पार्ट है। इट्स अ सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। वो आपसे पूछ रहा है, ये बताइए भाई, सजेस्ट वाई द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आफ्टर कोलिजन इज लेस देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बिफोर द कोलिजन। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आ जाएगा? जाहिर सी बात है कि ए और बी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर कोलिजन वो ज़्यादा है, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन कम है, क्योंकि कुछ एनर्जी इनका ज़ाया हुआ है जब ये ब्लॉक टकराया होगा। तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस और विच इज़ वेस्टेड इन दिस केस। सो इस वजह से आपका जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, इट मस्ट बी अ लिटिल बिट लेसर देन द टोटल एनर्जी। तो आप यहाँ पर क्या रीज़न लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट एमएस से दिखा देता हूँ। इसकी रीज़न देख लीजिए, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी में ज़ाया हो रही है एनर्जी, प्रोड्यूस एट कोलिजन इज लॉस्ट, ठीक है। और बस ये इन्होंने इसका टोटल जवाब दिया, ठीक है भाई, सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए ताकि आपकी समझ में आए। इस केस का एक और भी वर्जन है, वो भी देख लीजिए, वो भी आपका एक छोटा सा केस है। देखें इस केस को समझें। इस केस में क्या कह रहा है, एक मॉडल है, मैं ज़रा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। एक मॉडल, एक फायर स्टेशन है मॉडल का, और उसके ब्रेक जो है वो भी दबे हुए, मतलब उसके अंदर कोई ब्रेक सिस्टम भी है और वो आपने दबाया हुआ है, ठीक है। जब ब्रेक सिस्टम दबा हुआ है तो इसके गाड़ी के पहिए जाम है, दे आर जैम्ड, राइट। सो इफ़ दे आर जैम्ड, what will happen कि if the jet is fired in this direction, see the direction of the firing of the jet, कि वो इस डायरेक्शन में फायर हो रहा है, ठीक है। तो when the jet is fired in this direction, आपको मालूम है कि जेट से इस तरफ को पानी निकल रहा है, ठीक है, और जेट का पानी ब्लॉक को, ये जो हमारा फायर स्टेशन का मॉडल है, इसको बैकवर्ड धक्का दे रहा होगा। अच्छा, अब इस केस में मोमेंटम में एक बहुत अहम चीज़ छोटी सी वो भी जहन में रखिएगा कि इसमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का बड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये भी बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या होती है ये जहन में रख लें, ये सिर्फ याद रखने की कोशिश करें, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू से परहेज़ करें। क्या सीन है, बहुत सिंपल सीन है, वो ये है कि इफ़ द वेलोसिटी इज़ टूवर्ड्स राइट, it will be considered as positive. If the velocity is towards left, the velocity, it will be considered negative. If it is related to it, if it is considered to upward, it is positive, downwards negative, right? तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ये छोटा सा जहन में बना के रखें, ओके। तो अब टिल हेयर थिंग्स आर गोइंग ओके, अब तक समझ में आ रहा है आपको ये छोटी सी चीज़, ओके। तो अब जल्दी से ये केस देख लीजिए ताकि फौरी तौर पे ये वीडियो पूरी हो जाए, ओके। क्या कह रहा है जी, इतना इतना जो है 0.80 kilograms of water is emitted in the jet every 6 seconds, ठीक है। टाइम दिया हुआ है और वेलोसिटी पानी की इतनी होती है रिलेटेड टू द मॉडल। कैलकुलेट द चेंज मोमेंट ऑफ द वाटर जेट दैट इज इजेक्टेड इन 6 सेकंड। चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है यहाँ पर, इसने मास ऑफ वाटर तो दे दिया है, ठीक है, और मास ऑफ वाटर देने के बाद इसने आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंट ऑफ वाटर कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी कर दें, ठीक है। तो 8.0, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए मास इनटू वेलोसिटी कर दें। मास कितना है 0.80, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 0.72। इनको मल्टीप्लाई करें, चेक करें आंसर कितना आ रहा है, 0.80, 0.8 मल्टीप्लाई बस 0.72, ठीक है जी। आपको कितना आंसर आ रहा है, इट्स 0.576, 0.576 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। यूनिट ज़रूर लिखा करें, ठीक है, ओके। मैं इसका आपको दिखाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। 0.576, अच्छा 0.58 लिखा हुआ, उसकी रीज़न ये है, याद रखिए हमेशा कि इसके अंदर डेसिमल के बाद जो ये 2 डिजिट्स हैं, इन तक आपको जो है ना, ज़्यादातर आंसर्स में आपको यहीं तक के इनको यानी राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। तो ये 76 को 0.58 लिया गया है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि लिखने के लिए ये वाला आंसर है, ठीक है। जब आप आंसर मेंशन करेंगे तो यू मस्ट बी मैंशनिंग दिस आंसर ओवर है 0.58। लेकिन अगर आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा तो मैं यही वाली क्वांटिटी इस्तेमाल करूंगा अपनी कैलकुलेशन में, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉडल, ओके। कौन सी इक्वेशन थी, फौरी तौर पर रिकॉल करें, बेटा। रिकॉल करने से आप ज़्यादा सीखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम से भी रिलेटेड था, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया,
चेंज आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉडल बिकॉज ऑफ द जेट। तो फोर्स निकालने के लिए आपके पास क्या सवाल है, एक मिनट रुकिएगा। ओके जी, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पर मोमेंटम हमारा निकाल चुके थे, 0.58 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। वैसे आंसर हमारा 0.576 आया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमें मालूम है वो क्या कह रहा है, इट्स आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है जी, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग इज अबाउट फोर्स। सो टी विल मूव ऑन द अदर साइड, इट विल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम divided by time. What is change in momentum? 0.576 divided by how much time is there, is just 6 second, so 6.0 second, right, 6.0 second. So what will you do, divide by 0.6 second, नहीं 6.0, sorry 6.0 सेकेंड, ठीक है जी। आपके पास क्या जवाब आया, इट्स 0.096, राइट। राइट, सॉरी फॉर दिस, तबीयत ज़रा ऐसी होती है, तो ज़रा देख लीजिए इसको। नेक्स्ट मैं इसको एडिट करूँगा इंशाल्लाह, जब बाद में अपलोड करूँगा तो एडिट करूँगा। फ़िलहाल आप लोगों के लिए इमरजेंसी बेसिस पे वीडियोस बन रही हैं, तो इसको देख लीजिए, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे, इट वाज इक्वल्स टू 0.096 न्यूटन्स, राइट। तो ये आपकी इसमें आ गई, फोर्स आ गई 0.96, और राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं, कोई राउंडिंग की जाए तो बिल्कुल एक्सेप्ट होगी, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। ओके, अब इस सवाल को थोड़ा लॉजिकल और मज़ीद बना रहे हैं। कह रहे हैं द ब्रेक ऑफ द मॉडल आर रिलीज। अब क्या हुआ कि ब्रेक जो है रिलीज़ कर दिया, जैसे हैंड ब्रेक उठा लेते हैं, नहीं सॉरी हैंड ब्रेक गिरा देते हैं, तो हैंड ब्रेक गिराने के ऊपर क्या होता है, गाड़ी फ्री हो जाती है। तो इसका भी आपने हैंड ब्रेक जो है वो गिरा दिया। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मॉडल। अब बताइए किस तरफ जाएगी। मैंने आपको बताया है, अगर आपने बहुत सिंपल एग्जांपल है, कभी आपने अपने होस पाइप से, कभी अपने गार्डन में अगर आपने वाटरिंग की हो, ठीक है, तो पानी जो है वो इस तरह से आपको बाहर आ रहा होता है, राइट। आपने हाथ में को मॉडल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, राइट। अच्छा, अब सिनेरियो ये होता है, अगर आपने इसको मॉडल को ऐसे करके यूँ करके अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो पानी क्या होता है, पानी इस तरफ को जा रहा होता है और आपके धक्का आपके हाथ को इस तरफ बैकवर्ड को पड़ता है, राइट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा दुबई वगैरह में आपने इस तरह के टूरिस्ट अट्रैक्शंस से अगर गए हों तो कभी देखे होंगे, या वीडियोस भी देखी होंगी, कि जिसके अंदर लोग जो है वो पानी स्की जेट से बहुत तेज़ी के साथ नीचे से आ रहा होता है, और उसके ऊपर ऐसा स्टैंड होता है, और उसके ऊपर जो है लोग खड़े हुए होते हैं, इस तरह करके ऊपर खड़े हुए होते हैं, और वो बहुत तेज़ी से पानी, और वो उनको ऊपर उठाए हुए होता है, और बहुत सारे लोग तो उसमें बड़े मतलब बड़े अमेजिंग किस्म के करतब भी दिखा रहे होते हैं, राइट। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि पानी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, इट्स अप्लाइंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट कैन बैलेंस द वेट ऑफ द पर्सन, सो द पर्सन इज़ वो हवा में ऐसे उड़ता हुआ नज़र आता है आपको, ठीक है। बिल्कुल सेम वे में अगर आपका वाटर जेट इस तरफ को फोर्स कर रहा है पानी को, तो द फोर्स विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द ट्रक, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि द ब्रेक ऑफ द मॉडल रिलीज एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। क्या होगा कि आपका जो ट्रक है या आपका जो मॉडल ट्रक है वो बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी उसको कहिए कि वो राइट वर्ड जाने लग जाएगा, सीधे हाथ की तरफ, राइट वर्ड मूव करें, स्टार्ट्स टू मूव इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन होगी, इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, कि जब फोर्स इस तरफ को लगेगी तो चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से इट विल बी पुशिंग इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फोर्स ऑन द वाटर राइट बैकवर्ड होगी, यानी फोर्स जो पानी पर लग रही है वो आगे की तरफ है, लेकिन पानी बैकवर्ड फोर्स एज अ रिएक्शन, ठीक है, तो वो राइटवर्ड या बैकवर्ड उसको धक्का दे रहा है, ठीक है। ये बात जहन में रखें। एक और केस आपके सामने बिल्कुल आसान सा आ रहा है, मैं ज़्यादा डिटेल लिख नहीं रहा, इट्स जस्ट टू सेव द टाइम, यू आर ऑल्सो सीइंग इट्स आंसर ओवर हियर, सो एक नज़र देखने से भी काफ़ी केसेस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। वो कहता है कि भाई अब क्या हो रहा है कि मॉडल कंटेन्स
वाटर टैंक जो कि आहिस्ता पहले तो फुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पानी का मैग्नीट्यूड जो है इट इज़ गेटिंग लेस, ठीक है, नियरली एम्प्टी है, बिल्कुल खाली हो गया है, आधा रह गया, यानी कि पहले इसके अंदर का फुल पानी इतना इतना ऊपर ऊपर तक भरा हुआ था, तो अब ये रिलीज़ होते 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 पानी में थोड़ा सा पानी रह गया, इट्स जस्ट लाइक दिस, और ऊपर का सारा पानी इज़ नाउ एम्प्टी है, वो पानी ख़त्म हो गया इसमें, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन आपको पता होना चाहिए, इट इज़ बिकॉज कि द मास ऑफ द ट्रक इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, व्हाट विल हैपन टू द इवेंचुअल फोर्स दैट देयर विल बी मोर एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, अगर आप इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कार है और आप लोग 4 फ्रेंड्स जा रहे हैं, ठीक है, और होता क्या है कि कार में कोई किसी वजह से कार ब्रेक डाउन, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप अकेले नीचे उतरते हैं और अकेले धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी बहुत स्लो हो सकता है, हल्का सा मूव करेगी, राइट। अब आप लड़कों को, अपने दोस्तों को कहते हैं कि भाई तुम लोग भी नीचे आ जाओ, सब मिलके धक्का लगाते हैं, तो क्या होगा कि 3 लोग अगर नीचे आ जाते हैं तो 3 लोग एक साथ धक्का लगाएंगे, तो देयर विल बी यू नो द एक्सेलरेशन विल बी मोर, क्योंकि उसके मास जो है वो कम हो गया। या इवन अगर आप लड़कों को, वो लड़के धक्का नहीं भी लगाते हैं, 2 बल्कि सिर्फ आप ही लगाते हैं, लेकिन वो खाली उतर गए गाड़ी से, स्टिल यू विल बी एबल टू पुश द कार विद मोर एक्सेलरेशन, राइट, क्योंकि वजह यह है कि कार का मास कम हो गया है, तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, देयर विल बी मोर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज रिलेटेड टू F is equals to ma, that is when the mass is reduced, the force, if force is kept constant, so there will be more acceleration, just relate these things to that. Let me show you the answer over here, that is related to, these are the explanations, the acceleration is more, mass is less, so it means that when the force is kept constant, if the mass is getting reduced, there will be more acceleration. This is related to the change in momentum on the second law of motion. You can refer to any one of them, right. Thank you very much, thank you for watching this video, hope it will going to help you regarding some concepts. Thank you.